चित्रा जी, आपको प्रणाम। आपके पीछे बाबा जी है, उनको प्रणाम। इस माहौल को प्रणाम। About your guru, the Hera Khan Baba, another form of Mahavtar Babaji. I mean, I was floored, I was touched. पूछते रहो कि तुम यहाँ से क्यों आए हो और मैंने तुमको क्यों बचाया। ये पूछोगे, ये समझोगे तो फिलोसफी की सर्टिफिकेट आ जाएगी। को दैट इज द फुल ज्ञान। याद आ रहा है कि महावतार बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर को बोला, स्वामी जी आइए। तो श्री युक्तेश्वर ने बोला, अरे किसकी बात कर रहे हो, मैं कोई स्वामी नहीं हूँ। तो बाबा जी ने कहा, मेरे मुंह से निकला है तो ये सच ही होगा। नहीं किया, ऐसे पकड़ के मेरे आंखों में आंखें डाला। और जब मेरे दिमाग में बात आई कि मैं तुम्हारे साथ जन्म जन्म हूँ, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा होगा, मैं जन्म जन्म हूँ तुम्हारे साथ में, जितना गिरना है गिर लो। Good morning, Aditya. It is such a privilege to have you on this podcast, Growing Deeper Together. And before I ask you any question, I would request you to just say something about yourself. चित्रा जी, आपको प्रणाम। आपके पीछे बाबा जी है, उनको प्रणाम। इस माहौल को प्रणाम। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मेरा नाम आदित्य है और मेरा जन्म एक फिल्म फैमिली के अंदर हुआ है। और वहां से गुजरते गुजरते चलते चलते समय के साथ आज मैं 70 साल का हो गया हूं। तो इन सालों में मैंने फिल्म इंडस्ट्री से, बिजनेस बिजनेस इंडस्ट्री से और कुछ, और फिर करते करते अभी वापस मैं विद्यार्थी बन गया हूं। तो दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट केप्ट चेंजिंग माय थॉट्स ऑल द टाइम। एंड इट्स बीन अ ब्यूटीफुल लाइफ। नो ग्रम्बल, नो रिग्रेट। बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल। तकलीफें तो आती हैं पर तकलीफें अपने चुटकुले भी लेके आती हैं। तकलीफें कहती है, यार बैठो यहाँ पे हमारे साथ बैठो, अच्छा लग रहा है, और चुटकुले सुनो। तो कर्म कट जाते हैं ना चित्रा जी, वो तो करना ही है। तो बहुत आनंद आ रहा है। और माता पिता को याद करता हूँ मैं ऐसे समय पे कि इतना कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देम। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देम। तो और क्या आप कुछ पूछेंगे तो आप, मैं बताऊंगा। मैं तो अपने बारे में क्या बड़बड़ करते ही रहूंगा ऐसे। Yes, Aditya. So, Aditya, I came to know of you in 2018. Before that, yes, I've known of your father and your mother, legendary actors, but I was not aware of you. 2018, when we happened to move to Goa, and the person whose house we rented said that, let me introduce you to our beautiful neighbors. And that is how we met at the beach, Benolim Beach, for dinner. And what, I'm not a starstruck person, but what, I had this little kind of curiosity that what does a son of, such a famous personality I have grown up admiring, you know, looks like. And Aditya, you and Preeti both, in fact, you're calling me Chitra ji, but I'm still calling you Aditya. That is what I have always addressed you as. And you and Preeti, I mean, like, you came across as such refined people, such gentle people. And I don't know how I kind of heard the word Baba. I don't know how I heard that because there was no conversation around that. And I remember
Next time we met again for a dinner, just the four of us, and I asked you that, I heard this word, which Baba are you referring to? And you asked me, which Baba do you want to hear about? And I said, Mahavatar Babaji. And Aditya, whatever you and Preeti shared that night over that dinner about your Guru, the Hera Khan Baba, another form of Mahavatar Babaji. I mean, I was floored, I was touched. And since then, I hold both of you very, very dear to my heart. And gradually, as I discovered you, of your journey, I mean, I will come to the motorcycle journey, but the journey into academia, into philosophy. And right now, you're pursuing a doctorate. And last time we met, I so enjoyed just, listening to you. So I would like you to talk about wherever the thread is taking you, whatever is, coming to you as I shared. तो ऐसा मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। आपने जब डॉक्टरेट कहा तो मुझे मुझे अपना चेहरा नजर आया, जो मैं ऐसे पहले नहीं था। और आप मुझे नहीं जानती थी जब मैं 18 साल का था, 20 साल का था, 25 साल का था, 30, 40, 50। आपको तो मैं मिला जब मैं 60 साल का हो चुका। 60 साल तक तो पत्थर भी घिस घिस के थोड़ा चमकने लग ही जाता है। तो आपने रिफाइन कहा, तो हाँ, प्रीति जी तो जन्म सिद्ध रिफाइन है। तो मुझे रिफाइन होने में बहुत समय लगा, बहुत पत्थरें लगे, बहुत नदियां आई, बहुत नदियां गई। बाप रे, आप सुनते रहेंगी तो हैरान हो जाएंगी। पर फिर भी ये भोले बाबा जी, उनकी उनकी कृपा है, उनकी असीम कृपा है बाबा जी की। हेड़ा खान बाबा जी की बात करता हूँ। और उन्होंने मुझे, एक मक्खी को तेल में से निकालते हैं, जैसे आप घर के अंदर निकालते हैं ना एक मक्खी को, एक ही वो ही मक्खी, उसकी आजू बाजू वाली नहीं। बाकी मक्खियां अब तेल तक पहुंच नहीं वाली है, पर ये जो बेचारा पहुंच गया था, इसको निकालना जरूरी। केवल एक वो मक्खी को निकाल के परे रखा। मैं हैरान हूं चित्रा, आई एम सरप्राइज्ड। मैं केवल अपनी कहानी देखूं, सुनूं और समझूं तो सारा ज्ञान आ जाता है। क्योंकि आप वेद वेदांत पढ़िए, आप फिलॉसफी पढ़िए, दर्शन पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो आत्मा कहानी बहुत जरूरी है उसके अंदर। और मेरी आत्मा कहानी इतनी मोड़ों से गई है, इतने बापरे, इतने पत्थर आए, तो मैं सोचता हूँ कि कोई बताए तो सही। जरा 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड इंटरवल कीजिए, मुझे बताइए। मैं भाग नहीं रहा हूं, पर मुझे बताइए तो सही, ये क्या है। तो जब बाबा जी ने बताना शुरू किया स्वयं रूप में, जब वो थे यहाँ पे, और उन्होंने क्या बताया चित्रा, एक 20 साल का लड़का क्या समझेगा। मैं तो अर्बन लड़का था, एक डिस्कोथेक में जाना ज्यादा पसंद करूंगा, कहाँ आश्रम में पहुंच गया मैं। और बाबा जी ने, आज मैं बताता हूँ आपको, आज मुझे समझ आई जब मैंने फिलोसफी सब्जेक्ट पकड़ा है, कि बाबा जी ने मुझे संख्या फिलोसफी सिखाई, जो मुझे मालूम नहीं था। ना संख्या ना फिलोसफी, नहीं मालूम था। तो आज मैं जब ये देखता हूं, मैं बोलता हूँ माय गॉड, ही हैज लेड द स्टोन्स, फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ माय एंटायर लाइफ इन फ्रंट ऑफ मी। कि बेटा, किसी भी कारण, कारण मत पूछो ना तो फिर पछताओगे, पर किसी भी कारण मैंने तुम्हें बचाया है। अब बचाया है तो बच के रहो। तो जैसे लहरी महाशय जी कहते थे, बनत बनत बन जाए। तो बनते बनते मैं कहीं तो पहुंचूंगा। पत्थर भी कहीं पहुंचता है यार, मैं तो फिर भी इंसान हूं। तो कहीं तो कहीं पहुंच जाता है। और पहुंचते पहुंचते मैं जब अपनी जिंदगी में फिल्म इंडस्ट्री से निकला, तो आई गॉट इनटू द बिजनेस इंडस्ट्री। वहां बड़ी मुश्किल ये आई थी, क्योंकि मेरे पास ना तो स्कूल सर्टिफिकेट है, तो मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ फिर भी।
ना स्कूल सर्टिफिकेट है तो बैंक लोन नहीं ले सकता हूँ। और इन सब चीजें, पिताजी से पैसे मांगने नहीं, घमंड है। और वो कह रहे हैं कि बेटा खुद मेहनत करो। उनके पिताजी ने भी यही कहा था। ये सब बातें होती हैं, ये सामाजिक बातें होती हैं, इनको लेके चलना होता है। आप किस किस को दुत्कारोगे? आप किस किस पे गुस्सा निकालोगे? इट्स यूजलेस। ये आपके कर्म है, ये आपका समाज है, आपको समाज के साथ चलना पड़ेगा। और मैं चला उसके साथ में, हिम्मत से चला, पर चला। रोते रोते चला, बिलखते चला, पर चला तो सही, यहाँ हूं आपके सामने में। तो बहुत मुश्किल था। एंड विदाउट हैविंग एनी वेल्थ ऑफ माई ओन, करते करते फिर मैं नौकरी कहीं मिल जाती है, कोई दुखी आदमी होते हैं मुझे नौकरी दे देंगे, तो हो गई। और कुछ रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदारों ने मुझे नौकरी दी। बाबा जी के भक्त थे, उन्होंने मुझे नौकरी दी। और करते करते मुझे समझ आई ये बात क्या है। फिर मैं दुकान में जाके किताब पढ़ता था, और उसी किताब का नोट्स बना के घर जाके आपको सिखाता था कि ये क्या है, और फिर आपसे पैसे लेता था सिखाने की। समझ लीजिए इस किस्म का काम। हम्म। यही होता है, इंसान कैसे आगे जाएगा। और करते करते 20-25 साल निकले, विवाह हुआ, प्रीति जिंदगी में आई, दो प्यारे बच्चे आए। और माता पिता तो थे मेरे साथ में, वो तो संभाल संभाल के कि इसको कोई ठोकर नहीं लगे, तो जानता भी नहीं है क्या कर क्या रहा है। अभी देखिए ना, मेरी पहली माँ गीता बाली जी, सच अ फेमस एक्ट्रेस, इंडीड अ लेजेंडरी स्टार ऑफ अ टाइम। मतलब कि अपने जमाने में उन्होंने देवानंद और राज कपूर जी दोनों को टक्कर दी थी। हम्म। अगर आप उन सबका इतिहास पढ़ोगे तो आपको ये बातें समझ आएगी। और फिर भी उन्होंने एक दिन कहा चलो छोड़ो, शम्मी कपूर जी से शादी करते, जिंदगी आगे निकालते, मैंने मेरा जन्म हो गया, मैं धन्य हूँ। तो ऐसे कर उन्होंने ये सोचा होगा ना कि मेरा बेटा एक्टर बनेगा। हम्म। मेरे पिताजी ने सोचा था कि मेरा बेटा एक्टर बने, क्यों नहीं सोचे ऐसे? क्या कोई गलत बात तो नहीं है? Right. उन्होंने एक तैयारी की, उन्होंने जितना परिश्रम किया, जितनी सैक्रिफाइस की, इसीलिए की ताकि बुनियाद बने आगे के लोगों के लिए, कुछ काम करने के लिए। और गुरुजी आ गए एक दिन। गुरुजी ने कहा ना बेटा ये काम नहीं करोगे, ऐसे उठा के निकाला जाके, मैं कोई हाँ भी नहीं बोलूं, ना भी नहीं बोलूं। मैं ये भी नहीं पूछूं महाराज कोई मैन्युअल है, ये है वो है, क्या करूं, नखरा नाटक, नथिंग, नथिंग चित्रा। ही जस्ट पिक मी अप लाइक दिस एंड टुक मी देयर। और माता पिता कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने ऐसा एक एक एटमोस्फेयर बनाया कि कोई मेरे पास नहीं आए बात करने के लिए, मैं किसी के पास नहीं जाऊं बात करने के लिए। वो जो परिवार में होते रहता है। और इसके कारण मेरी जिंदगी आगे चलती रही, मैं सीखते रहा, मेरे आदतें बदली हुई, मेरी सोच बदली हुई। और जब भी मैं बाबा जी के पास जाता था उन दिनों में तो बाबा जी केवल फिलॉसफी की बात करते थे मेरे से। और ऐसे नहीं कि कोई किताब से पढ़कर, चलते चलते समाज की जो फिलॉसफी जैसे होती, पत्थर लग गया पाँव में, अच्छा बच के चलो, इस किस्म की फिलॉसफी। और हर वक्त आज मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, ही वुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म। ये समझो, ये सीखो, ये क्या है। और आगे जाके जब उन्होंने समाधि ले ली और मैं थोड़ा अकेले पड़ गया कुछ समय के लिए, हालांकि उन्होंने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। समाधि के समय में भी उन्होंने मुझे एक ऐसी फीलिंग दी कि बेटा मैं तभी मरूंगा जब तुम मुझे मारोगे, जब तक मैं जिंदा हूं। तो कितनी बड़ी बात है। तो जब तक बाबा जी मेरे दिल में रहे, स्वप्न में आते हैं, आप जैसे लोगों के द्वारा कुछ संदेशा भेज देते हैं, तो करते करते बाबा जी ने मुझे ये कहा, पूछते रहो कि तुम यहां से क्यों आए हो और मैंने तुमको क्यों बचाया। ये पूछोगे, ये समझोगे, तो फिलोसफी की सर्टिफिकेट आ जाएगी। को दैट इज द फुल ज्ञान। ये वेद वेदांत भी यही तो कहते हैं। और उन्होंने दूसरी बात कही मुझे, समझाई सनातन धर्म की। ही इज अ प्योर गुरु। उनको मतलब के यहाँ वहां की बातें छिछोरापन, नथिंग डूइंग, नो टेलीविजन, नो इंटरनेट, नो न्यूज पब्लिकेशन, नथिंग, कुछ था ही नहीं। मैं एक ही बात बताऊंगा चित्रा जी, ने तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हो जाएगी। वो सोच सकते थे मैं क्या सोच रहा हूं, वो सोच सकते थे। और ये नहीं आसान बात, मुश्किल बात। और वो मुझे आंख मिला के कहते थे खबरदार, समझो मैं कुछ गलत सोचता हूँ। और 18 साल की उम्र में इंसान क्या अच्छा सोचेगा?
वो मेरे आंख मिला के कहते थे खबरदार। तो मैं डर जाता था, मैंने बोला "अब हे भगवान, जो आदमी मेरी दिमाग के अंदर घुस गया है उससे मैं कहाँ भागूं किधर। और ये भागते भागते समझते समझते चित्रा जी कहीं बीच में प्यार हो गया बाबा जी से। यानी मैं भक्त बन गया, यानी मैं लीन हो गया। मैंने बोला यार, आप भाग नहीं सकते हो, ही कैन रन फास्टर देन यू, ही इज समथिंग बिगर। वो चाहते थे तो बरसात हो जाती थी, चाहते थे तो बरसात बंद हो जाती थी। जब गर्मियों के टाइम पे बाढ़ आ जाती थी, भगवान जाने क्या क्या होता था ऐसे से, ये कहाँ पे, वेर इज ही, वेर ऑल इज ही और वेर ऑल इज ही नॉट। तो इट यूज टू बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। तो मैंने तब कहा देखिए, मैं हार गया, आप जीत गए महाराज। और वहां से एक प्रेम का रिश्ता शुरू हुआ। बाबा जी ने मुझे मिलना बंद कर दिया फिर। उनकी जो आखिरी जो 3-4 साल थे, ही स्टॉप्ड कॉलिंग मी। उनका ये कहना था जो मुझे समझ आई थी कि बस सिखा दिया, अपने आप समझो, घर बनाया, गृहस्थ बनाया तुमको, माथा फोड़ो अपनी वाइफ के साथ में और ज्ञान प्राप्त करो, मेरा टाइम पूरा हो गया। दिस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और एक और बात उन्होंने मुझे कही जो मुझे समझ आई है, कि मैं स्कूल टीचर नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेसर भी नहीं हूं, मैं एक किस्म का इस दुनिया, इस सृष्टि को बनाने वाला हूं। तो जैसे जैसे समय आएगा मैं तुम्हारे सामने किताब भेजूंगा, लोग भेजूंगा, प्रोफेसर भेजूंगा, ये भेजूंगा, वो भेजूंगा, तुम उनके साथ में लगे रहो। और आप यकीन मानेंगे, कहाँ कहाँ से गुरु मेरे सामने आए। स्वामी मुक्तानंद जी की किताबें मेरे सामने आ गई, मैं, मुझे समझ में नहीं थी कि क्या है। उनकी इतनी बढ़िया किताबें, एक ही किताब एक गुरु ने लिखी है, जिसमें लिखा हुआ है चित्रा, गुरु कैसे बनना चाहिए, वर्कशॉप ऑफ गुरु, चित्त शक्ति विलास। पता नहीं वो अभी प्रिंट में है कि नहीं है, मेरे पास एक किताब है घर पे, मैंने बहुत संभाल के रखी। हाउ टू बिकम अ गुरु, मतलब नॉट द फिलोसफी, तो Hmm. उसका जो योग क्या है, उसकी मशीनरी क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। एंड ही हैज डिस्क्राइब्ड इट सो ब्यूटीफुली। नित्यानंद जी, मुक्तानंद जी, आपने सुना होगा इनके नाम। ऐसे करते करते लोगों ने अपनी किताब भेजे नहीं, वो मिल जाते हैं, आप दुकान में जाते हो तो वही किताब आंखों के सामने होती, दूसरे को नजर नहीं होती, और आप छीन लेते हो उसको। फिर आस्ते आस्ते मुझे समझ आई कि ये बाबा जी भेज रहे हैं, तो मैं छीनना शुरू किया। छीनना मतलब इसके पहले के ये कोई और ले ले तो मैं झट से पैसे निकालूं, घड़ी बेच दूं, किताब खरीदूं, कुछ भी करना पर वो किताब खरीदनी है। मैं यहां तक पहुंचते दौड़ लग गई मेरी कि ही समथिंग इज हैपनिंग टू मी। और काम तो बढ़ चलते रहता है, अपना काम चलते रहता है, अपना चलते रहता है। प्रीति जी से विवाह किया। तो प्रीति जी का बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है। शी इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्टेबल फैमिली, शी इज नॉट कमिंग फ्रॉम फिल्म फैमिली। फिल्म फैमिली इज स्टेबल इन इंस्टेबिलिटी, बिकॉज इतनी इमोशंस होती हैं। अगर इतनी इमोशंस नहीं होगी चित्रा जी, तो आप स्क्रीन पे कैसे काम करोगे, आप बताइए मेरे को, इट्स नॉट पॉसिबल। Yeah. तो कुछ तो हर जगह प्रॉब्लम होती है। तो मेरी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि उनकी प्रॉब्लम अगर थी भी तो बहुत कम थी। तो ऐसे हमारी दोस्ती चलते गई, चलते गई, चलते गई, चलते गई। और सबकी मेहरबानी से आशीर्वाद है और समाज का आशीर्वाद है, हम अब तक यहीं पे हैं, आपके सामने हैं। तो ऐसे ऐसे गुरु की किताब, भक्ति की किताब, भक्ति की किताब से ज्यादा वेदांत की किताब आने लग गए। पहले भक्ति से शुरू हुआ, भक्ति से वेदांत तक पहुंच गए। देन आई मेट स्वामी पार्थ सारथी जी। Hmm. उनकी बड़ी बड़ी कृपा है मेरे पर। पार्थ सारथी जी इज वन ऑफ द पीपल हु हैज अ वेदांत इंस्टीट्यूट वेर यू गेट अ मास्टर सर्टिफिकेट इन स्पिरिचुअलिटी, और वेदांत, इन वेदांत यू गेट इट। तो मैं वहाँ प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मैं उनके आश्रम में चले गया, तो वहां से उनकी किताब मिली। फिर 2 महीने बाद उनके दर्शन हुए किसी के घर पे। तो उन्होंने कहा मेरा किताब पढ़ते हो? तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपका किताब पढ़ के जरा भय लगता है। मेरा वो समय था जब मैं कुछ पढ़ नहीं सकता था। मैं पढ़ूं तो दिमाग में डर लगता था। यू हैव टू हैव अ बैंडविथ टू अंडरस्टैंड। मतलब ABCD के बदले में BCDA नजर आता था, ये सब जो बातें होती हैं, वेरी कंफ्यूजिंग। So I used to read novels and fiction. That is a habit my father put into me, and I'm very grateful to him. उन्होंने कहा पढ़ो तो डंडा पड़ेगा। मैं पढ़ा पढ़ा, उन्होंने सारी लाइब्रेरी मेरे लिए खोल के रख दी थी। वो किताब पढ़ते थे, पढ़ के मुझे देते थे, पढ़ो।
मैं नहीं, अगर मेरे पास पैसे थे मैं नई किताब खरीदता था, मैं उनको देता था, पिताजी पढ़ो। तो शौक से पढ़ना भी नहीं था तो मेरे से लेते तो थे पढ़ने के लिए। तो ऐसे करते करते ये समय अच्छे से गुजरा, अच्छे से गुजरा। और पार्थसारथी जी ने मुझे कहा, किताब शुरू की है तो उसे पूरा करो। ही टोल्ड दिस टू मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। तो मुझे शर्म आई। मैंने बोला इतने बड़े आदमी हैं और गद्दी पे बैठे, आसन पे बैठे, मैं आसन पे नहीं बैठा, मैं जमीन पे बैठा, तो कम से कम इतना तो तुमको समझ होनी चाहिए कि वो भाई आसन पे बैठा है तो कोई तो होगा। एंड आई एम कमिंग, बाय दैट टाइम आई वाज फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ बाबा जी, और मैं थोड़ा सुधर गया था, तो थोड़ा ज्ञान भी आ गया था कि गुरु लोग कैसे होते, तो भैया जरा प्रणाम करो। मुझे शर्म आई। तो मैं रात को जब घर गया, शाम को घर गया, तो मैंने बोला मैं आज एक पेज पढ़ूंगा। एक पेज पढ़ा, रात को बाबा जी सपने में आए और मुझे आशीर्वाद देते, तो मैंने पूरी किताब 5 बारी पढ़ी है। Wow. 5 times I read his book, A Vedanta Treatise. Yeah. It is the book for every human to read. हर इंसान, मैं चाहता हूं कि आप सब समझे, ये किताब पढ़िए। सारा वेदांत उपनिषद, जितने भी वर्ल्ड के रिलीजन है, सब कुछ उसके अंदर है। यस, यस, सिंक्रेटाइज्ड एवरीथिंग। हर चीज का निचोड़ निकाला है और उसे एकत्र किया है और एक साथ लगाया है उन्होंने। Yeah. फिर ये पढ़ने के बाद मैं फिर दर्शन के लिए गया। मैं वाइफ को बोला चलो जाके मिलते हैं उनको, कहाँ कहाँ रहते हैं। तो क्या पता लगा आपको, आप जानती हैं, वो मेरे घर के पीछे रहते थे, बंबई में। मतलब मेरे घर से मैं चल के जाऊं तो उनका घर आता है। मैंने बोला ये ऊपर वाले की किस किस किस्म की मेहरबानी है। तो मैं उनके सामने गया और दर्शन किए, और सब ऐसे जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने सब बातें बताई उनको। तो उन्होंने मेरी किताब ली, तो किताब में मैंने सब नोट्स बनाए थे। ये नोट, ये नोट, ये नोट, 5 बार ही पढ़ा तो 5 लेवल के नोट्स थे। तो बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला ये बंदा सीरियस है। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 40-45 उसके आजू बाजू में था। तो उन्होंने कहा आखिरी चैप्टर क्यों नहीं तुमने पढ़ा। मैंने बोला महाराज आपका ज्ञान आखिरी चैप्टर है, मुझे पढ़ते हुए डर लग रहा है थोड़ा। मुझे डर लग गया था, क्योंकि जब सत्य ज्यादा हो जाता है, इंसान क्या बोलता है, अरे भैया कल नौकरी करनी है, समाज में रहो। मुझे डर लग गया। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, सर पे हाथ रखा और किताब में कुछ लिखा और जाने दिया मुझे। तब से उनकी बातें मेरे दिमाग में आई। दैट फिलोसफी हेल्प्ड मी टू गो फर्दर इन द स्टडी ऑफ फिलोसफी फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। फिर गोवा आया। गोवा आया तो मेरी बेटी ने कहा था कि इसको, ये अकेला रहेगा तो बिगड़ जाएगा, अभी रिटायर हो गया तो कुछ इसको जरा कुछ कंट्रोल में रखना चाहिए। तो उसने कहा डैड आपने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करते हो, बेटी है, धक्का मारती है कि कुछ करो आगे जाके। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसने बोला नहीं तो आप ऐसे नहीं मानोगे। तो रात के टाइम पे बंबई में थे हम लोग, मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेके गई, एक फोटोकॉपी की दुकान थी, तब का जमाना जरा सिंपलर था। तो फोटोकॉपी की दुकान पे लेके गई, बोली आधार कार्ड निकालो, तो आधार कार्ड निकाला। तो वो फॉर्म कुछ थे हमारे पास में, तो फॉर्म पे उसने लिखा, साइन किया, ये किया वो किया, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी की, और बोले ये देखो ये फॉर्म है, अगर नहीं भरोगे तो मुंह मत दिखाना। मतलब मुझे शर्म आनी चाहिए कि बेटी कह रही है, मतलब उसने ऐसा कुछ डायलॉग अच्छा बोला, एन एक्सेलेंट डायलॉग राइटर। तो मैं गोवा आया, तो वाइफ ने कहा जब किसी ने बोला है क्यों नहीं करते हो, और क्या करोगे बैठे बैठे। तो मैं इग्नू में गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो मैं वहां गया चित्रा। तो प्रीति और मैं गए, अब दो अकेले थे हम लोग यहाँ पे गोवा में। तो हम गए वहां पे, तो प्रोफेसर आए, यस। तो उन्होंने देखा स्टूडेंट किधर है। तो मेरी वाइफ ने बोला यही स्टूडेंट है। तो जैसे आप हंस रही हो वो भी ऐसे हंसने लग गया। उन्होंने बोला हे भगवान ये स्टूडेंट है। तो मैंने बोला भाई साहब मैं ही। तो रिसेप्शनिस्ट खड़ी हुई थी वहां पे, वो सब सुन रही थी बातें। तो प्रोफेसर बोलते एक मिनट में फॉर्म लेके आता हूँ। तो फॉर्म लेने चले गए, तो अच्छा हुआ चले गए, थोड़ी शर्म आ रही थी, थोड़े गाल लाल हो गए थे, वापस नॉर्मल हो जाए। तो फिर रिसेप्शनिस्ट आई, आप क्या सब्जेक्ट ले रहे हो। मैंने कहा फिलोसफी। बोलते हैं लैंग्वेज लीजिए, निकल जाओगे। मुझे चित्रा इतनी शर्म नहीं थी कभी। मैंने कहा हे भगवान अब तो मैं फिलोसफी ही लूंगा, मैं और कुछ नहीं लूंगा, और इसमें ही आगे चलूंगा। खैर वो समय निकल गया। बीए किया मैंने,
बीए किया, सेकंड क्लास पाया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, आई कीप टेलिंग एवरीबॉडी ताकि पीपल रियलाइज। और मैंने ये शुरू किया 62 63 की ईयर्स की एज में। बीच में मैं मोटरसाइकिल राइड पे भी गया, और ये बीए किया, फिर सेकंड क्लास मिला मुझे, एक आधे पॉइंट, मतलब 20 पैसे से मैंने फर्स्ट क्लास मिस किया। तो सबने बोला एक एग्जाम वापस दे दो यार, फर्स्ट क्लास मिलेगा। मैंने वो नहीं, जो मिल गया है अच्छा मिला है, इसमें दौड़ नहीं लगानी है। एमए मास्टर्स किया इमीडिएटली जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट मिला। चित्रा, आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू, जिस दिन सर्टिफिकेट मिला मैंने उस दिन एमए के पैसे भरे, उस दिन। क्योंकि उनके कंप्यूटर पे आ जाता है ना कि आदित्य जिंदा है, मतलब वो ये सर्टिफिकेट के साथ में है, तो स्कैम आर्टिस्ट नहीं है। मैंने उसी दिन भरे और मैंने पढ़ाई शुरू की। मास्टर्स किया, 2 साल लगते, 2 साल में किया, मुझे फर्स्ट क्लास मिला, एंड डिसेंट फर्स्ट क्लास, 64%। आई एम वेरी हैप्पी यार, 64% अच्छा है। मतलब खाता पीता है, मतलब ठीक है, ये बंदा ठीक है, ही इज क्वालिफाइड यार, ले लो उसको कंपनी में, कुछ कर लो इसके साथ में। आई वाज वेरी हैप्पी। वो बीच में बाबा जी को तो मैंने बहुत, हर दिन मैं थैंक यू बोलते रहता हूँ कि महाराज ये आप हैं, आप हंस रहे हो मेरे ऊपर कि अच्छा तूने किया है, वेरी गुड, मिलना मेरे को आगे जाके। तो ऐसे करते करते समय निकलते रहता है। मास्टर्स किया, जिस दिन मास्टर्स का सर्टिफिकेट मिला, जिस दिन, उस दिन मैं गोवा यूनिवर्सिटी में गया। मैं प्लानिंग तो पूरी कर ली थी पहले, गोवा यूनिवर्सिटी में गया, प्रोफेसर को मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला महाराज अपना लो मेरे को, अनाथ आदमी हूँ, अपना लो, मुझे थीसिस करना है, डॉक्टरेट बनना है। तो उनको लगा ये, जब तक तो पता चल जाता है शम्मी कपूर जी का बेटा ये है वो है, और थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आ जाती है ना। अब आप मास्टर्स करके जा रहे हो तो आप एक कोई छोटे मोटे स्टूडेंट तो नहीं, किंडरगार्टन वाले तो नहीं हो। तो उनको लगा कि ये मस्ती मजाक वाला तो आदमी नहीं है, फिल्म फैमिली का है, मतलब गोवा यूनिवर्सिटी इज अ वेरी सीरियस यूनिवर्सिटी, उनका नाम नहीं खराब हो। तो मैंने कहा पूछिए कुछ, अगर आपको मुझे कोई तो उन्होंने ऐसा इम्तिहान तो नहीं लिया, बड़े प्यारे हो गए और दोस्ती का हाथ बढ़ाया मेरे साथ में। तो 2 3 बारी मिला, और उसके बाद में मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, एंड द इंटायर टीम ऑफ प्रोफेसर in SSPIS, School of Sanskrit Philosophy and Indic Studies in Goa University. They all helped me right from filling up the form right to eligibility, everything. They said कि हमको देखना है क्या है, क्या ये किस किस्म का आदमी है। तो आई एम ऑन द पाथ ऑफ थीसिस नो, साथों साथ आई मस्ट शेयर विथ यू, ताकि लोगों को पता चले कि यार पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। Right. और ये है कि मैंने साथ साथ संस्कृत पढ़ना भी शुरू किया है। आचार्य शोभा है, उनकी कंपनी है, उनकी वेबसाइट है तत्वम करके। इट इज अ वेरी नाइस ऑनलाइन संस्कृत कोर्स, एंड शी इज माई टीचर। तो मैंने तय कर लिया है, चित्रा, अभी आज आपके साथ में कमिटमेंट कर रहा हूँ, देखिए वीडियो के ऊपर देखते क्या होता है कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं केवल संस्कृत में बात करूंगा और कोई भाषा में बात नहीं करूंगा। और मुझे जाने की जल्दी नहीं है किधर, यानी लोग कहते हैं ना कि मर जाओगे, काय का मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन है ऊपर, कोई नहीं, सब यहाँ पे हैं। इंटरव्यूज यहाँ होते, ऊपर कोई इंटरव्यू नहीं लेने वाला। तो यहाँ पे, तो ये एक दौड़ है। मैं आपसे ऐसी सब बातें बता रहा हूँ, आई डोंट नो इंटरेस्टिंग है कि नहीं, पर मैं सब बातें दिल खोल के बातें कर रहा हूँ चित्रा, कि लोगों को लगे कि भैया अच्छी भी चीजें हो सकती है भारत के अंदर, सब लोग ये कहते हैं समाज के साथ में, और आज का समय ऐसा खराब है, ये है वो है, पर अच्छी बातें भी हो सकती हैं। तो ऐसे नहीं कि मेरे साथ में सब अच्छी बातें हुई हैं ना, प्रॉब्लम की बातें हुई। हो सकता है आधे से ज्यादा बातें मैंने ही शुरू की अपने प्रॉब्लम के लिए, अपने पाँव कुल्हाड़ी से मारा। अच्छा ठीक है भैया, अपना पाँव कुल्हाड़ी से मारा, आई एम सॉरी, आपको सॉरी, मेरे को सॉरी, कुल्हाड़ी को सॉरी, पर अभी आगे चलो ना यार। तो ये सब बातें हैं। अब मैं क्या कहूँ आपसे, बताइए चित्रा। Yeah. Thank you for sharing that, Aditya. Uh, I read Mr. Parthasarthi's book, मतलब मेरी लाइफ में आई ईयर 2000 में। और आई वॉज ऑल्सो वेरी मतलब वो कैसे मेरे कुछ खिड़कियां, मेरे दरवाजे खोल दिए मेरे दिमाग के। फिर मेरे बड़ा बेटा वो बुक ले गया। और अभी जब आप बात कर रहे हो, और मुझे लग रहा है कि मुझे एक बारी फिर से, बिकॉज आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन इन 2000। जैसे आपने बोला कि 5 बार जब आपने पढ़ी तो 5 बार नोट्स अलग हुए।
तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग इट। तो अब मैं ये किताब ज़रूर खरीदूंगी और पढ़ूंगी। एंड एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी। आपने मुझे बताया था कि बाबा जी आपको पंडित जी कहते थे जब आप अभी छोटे ही थे और कुछ पंडित वाली कोई बात नहीं थी। तो आज की डेट में तो आप एक्चुअली पंडित जी हैं, बन रहे हैं, संस्कृत में जा रहे हैं। तो उन्होंने तो जैसे ना, मुझे याद आ रहा है कि महाअवतार बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर को बोला, स्वामी जी आइए। तो श्री युक्तेश्वर ने बोला, अरे किसकी बात कर रहे हो, मैं कोई स्वामी नहीं हूँ। तो बाबा जी ने कहा, मेरे मुंह से निकला है तो ये सच ही होगा। और वो एक दिन स्वामी श्री युक्तेश्वर बने। तो आपको भी मैं देख रही हूँ कि आपको उन्होंने पंडित जी बोला, और वो कैसे सच हो रहा है। तो ये है कि बाबा जी, और खास करके बाबा जी, मैं बाबा जी की बात करता हूँ, बाबा जी वुड गिव अ नेम टू एवरी डिसाइपल। हम्म। ताकि आदित्य राज कपूर, वो अपने घर में है भैया, आप बॉम्बे जाओगे, प्लेन उतर जाएगा, वहां पे घर जाओगे तो वो आपको आदित्य करके पुकारेंगे। यहाँ पे आप पंडित हैं। और उन्होंने नाम दिया, पहले उन्होंने नाम दिया था कलवा। कलवा, कलवा के दो रूप होते हैं। कलवा एक होता है काल भैरव, एक होता है कलवा, यानी बेटे को प्यार से कहते हैं, अरे कलवा यहाँ पे आओ। किसी को प्यार से, बेटे को, अनुज को ऐसा कहते हैं। तो ही गेव मी द नेम कलवा, देन ही गेव मी द नेम कलवा पंडित। तो ये नाम उन्होंने दिए हैं, उन्होंने दिए एक तो इतिहास मिटाने के लिए, हम्म। ताकि वो, ये नामकरण होता है ना, जैसे जनेऊ बदली होता है, नामकरण होता है, तो आपके अंदर उनकी उनकी वाणी चले जाए और आपने आत्मा को हिला दे बिल्कुल, कि हम्म। भैया पंडित बनना है, और कुछ करो ना करो, जब तक जिंदा रहोगे ऑक्सीजन को पकड़ के चलना, पर पंडित बनना है। दिस इज व्हाट बाबा जी यूज्ड टू फोर्सफुली डू, कि मैं हूं यार, जब मैं हूं और सारे तुम्हारे सामने ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हें तुम पकड़ के रखो तुम्हारी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, बड़ा प्यारा था। मैं नदी के ऊपर चल रहा था, एक छोटा सा, वो लॉग्स, वो लकड़ियां होती है नदी के दो तट के बीच में, 10 फुट का लकड़ी थी, तो किसी ने, गांव वाले ने रखा था। तो बाबा जी अपने आश्रम में हेड़ा खान में नदी क्रॉस कर रहे थे और मैं उनके पीछे था। जब बाबा जी चलते हैं तो आप उनके पीछे ही चलते हो, आप उनके आगे नहीं चलोगे। तो इतनी तो थैंकफुली अकल थी मेरे में, तो मैं उनके पीछे चल रहा था, और थोड़ा चिपक चिपक के चल रहा था, ताकि साथ चले, बिकॉज यूज टू वॉक इन अ वेरी, एक शेर की तरह चलते थे। मतलब एक पाँव दूसरे पाँव के बीच में कोई 6-8 फुट का फर्क कभी हो भी जाता था, तो पता नहीं चलता था कि ये कैसे, हाउ कैन ही डू दैट, गुरु जितने होते हैं, सिद्ध लोग होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो नदी जो बीच में आए, वो लकड़ी के बीच में आए, मतलब नदी के ऊपर खड़े थे, और तेज बहाव था, और 2 फुट के बाद में पत्थरें थी। तो मैं नदी को देखा, क्या बात है, नदी कितनी खूबसूरत है, वाह नदी जी आपको प्रणाम। कुछ पता नहीं क्या, कुछ कोई शहरी बात मेरे दिमाग में आ गई, कोई चुटकुला, जोक, मजाक, मस्ती, पर फोकस निकल गया। मेरा फोकस जो था वो निकल गया, और मैं गिरने लगा। मैं गिरा। अब शर्म के मारे आवाज नहीं निकली। गलती मेरी, गिरना मेरा, शरीर मेरा, अहंकार मेरा, तो दूसरे को कैसे बुलाऊं मैं? तो शर्म आ जाती है इंसान को। तो शर्म आई, तो शर्म के आई, तो आवाज नहीं आई, और मैं यहां तक गिर गया था, बाबा जी घूम गए। उनको कैसे पता चला मुझे आज तक मालूम नहीं। बट ही टर्न्ड अराउंड, ही कॉट माई हैंड लाइक दिस, पर खींचा नहीं, सीधा नहीं किया, ऐसे पकड़ के मेरे आंखों में आंखें डाला। और जब मेरे दिमाग में बात आई कि मैं तुम्हारे साथ जन्म जन्म हूं, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा होगा, मैं जन्म जन्म हूं तुम्हारे साथ में, जितना गिरना है गिर लो। जब ये बात मेरे दिमाग में इतनी स्पष्टता से नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, पर अपनी उस समय के जो मेरी अकल थी उसके हिसाब से आई, तब जाके उन्होंने मुझे सीधा किया। और कुछ कहा नहीं, क्यों ध्यान नहीं देते हो, ये वो, माँ की तरह, बाप की तरह, इसकी तरह, ना ना ना। ही जस्ट टर्न्ड अराउंड एंड कंटिन्यूड। जो हो रहा था
उस पे चलते गए वापस। वो जा रहे थे तो वो चले, मैं भी चला पीछे पीछे। तो ऐसे ऐसे किस्से हुए मेरे साथ में ना चित्रा। तो मुझे लगा देखिए, इज नॉट ऑर्डिनरी। ये तो पक्का हो गया कि ऑर्डिनरी नहीं है। वो साइंस बुक में, फिजिक्स बुक्स में जैसा लिखा होता है, ये वो उन किताबों से नहीं है। तो कुछ अलग है, तो चलो हम भी उनके साथ चलते हैं। और जब ये बात एकदम दिल में लग गई, जब समय निकलता है ना, जब 40-50 साल का हो गया, तब मुझे लगा कि अब यही रास्ता है। देखिए बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपनी नौकरी करते हैं, अपना काम करते हैं। अब शादी करे नहीं करे, जो करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका जीवन है। This is very important for people to know. Everybody is running after getting their children married. You have to get them qualified for life. Full stop. That is my opinion. Qualified for life. तो उसको क्वालिफिकेशन के लिए मार मार के सर्टिफिकेट ऐसा मत बनाइए जो 100 साल तक चले। तो उनका काम है। तो वो उनकी डिस्कवरी क्या रहेगी फिर लाइफ में, उनकी कमिटमेंट क्या रहेगी? ये तो आपने भेजा मेरे को, अरे अपनी डिस्कवरी होनी चाहिए। तो ये सब जो परे हो गए, सब चले गए अपने अपने रास्ते में। तो प्रीति और मैं एकत्र हो गए और वी स्टार्टेड डिस्कवरिंग ईच अदर। Yes. एंड ईच अदर स्टार्टेड डिस्कवरिंग बाबा जी, कि बाबा जी ने क्या क्या बातें बोली थी जो बचपन में नहीं लगती, जवानी में नहीं लगी, इस उम्र में लगी। उन्होंने कहा था गोवा जाओ, हम गोवा आ गए। अब How गोवा जब beautiful. उन्होंने कहा था गोवा जाओ, तब तो कोई गोवा की बात ही नहीं थी। तो Yes. तब हम सब बातें जोड़ने लगे कि बाबा जी ने तुमको क्या कहा था, मुझे क्या कहा था, इसको क्या कहा था, उसको क्या कहा था, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। देखो भाई, ये तो भविष्यवाणी है, इस भविष्यवाणी को पकड़ के चलो जरा। तो तो दैट इज आदित्य, हाउ वी। yeah, yeah. हाँ। So thank you, मतलब दिल खोल के आपने बात की बाबा जी के बारे में। और बहुत सारी बातें हैं, कुछ जो मैंने आपसे सुनी है और कुछ जो बिल्कुल नई होती हैं। तो वी विल डू perhaps some more conversations on that, and I would definitely want to do conversations on your motorcycle world tour and also on philosophy that you are studying. So because we have this paucity of this time, इन द सेंस कि देर इज हमने वो दिया हुआ है एक कितना पॉडकास्ट का टाइम है। सो इट इज बीन सच अ प्लेजर, ग्रेट प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू चित्रा जी। प्रणाम आपको, प्रणाम बाबा जी को। यस, आपको भी प्रणाम। थैंक यू।